अल रिजवान स्कूल का 10वीं का नतीजा 95% रहा। अल रिजवान स्कूल से 60 तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में हिस्सा लिया था। इनमें से 9 तलबा ने 90% से जायद नंबरात हासिल किए। सैयदा जोफा अनम सैयद मतीनुल्लाह कादरी ने 94.60% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। फारूकी इल्लीन अमान तनवीर हुसैन फारूकी ने 93.20% नंबरात हासिल किए। तस्कीन फातिमा इदरीस अहमद ने 92.40% नंबरात हासिल किए। अफराह समीन अहमद नदीम ने 91.80% नंबरात हासिल किए। तंजीला शेख मुख्तार ने 91.60% नंबरात हासिल किए। मोहम्मद उमर फुरकान फारूकी नसीरुद्दीन फारूकी ने 91.60% नंबरात हासिल किए। सारा अनुश अब्दुल जब्बार ने 90.80% नंबरात हासिल किए। साइमा सिद्दीका अहमद सिद्दीकी ने 90% नंबरात हासिल किए। उमर अब्दुल्ला मोमिन शमीमुल हसन ने 79.80% नंबरात हासिल किए। Alhamdulillah, it's really very happiest moment for me as well as for my family, as I have secured 94.60% in SSC board exam. I'm the luckiest one to be the part of this marvelous institution, that is Al Rizwan English School is very purely and honestly working for the betterment of all students. As we all know that this year the syllabus was changed, the paper pattern was new, tough and challenging without internal marks in all the languages. But in spite of all these challenges, I myself and many of my classmates secured more than 90 marks in each and every subject. Moreover, I have secured 100 out of 100 marks in mathematics by the grace of Allah, Alhamdulillah. I am very grateful to Director Abdul Rashid Sir, Principal Madam Sayyida Tehsin Fatima and a team of my hardworking devotional teachers who have done very sincere efforts for my remarkable results. The most amazing part of my result is that whatever shining results we were enjoying in our round exam, the same result we have enjoyed in our board exam. It shows the keen and perfect evaluation of our teachers. As Al Rizwan English School has a unique identity of having a tuition-free full-day college, so Alhamdulillah this school is 100% true to its words. Definitely the student of this school don't require any extra or external coaching from any tuition. I also never felt any need of tuition at any time, at any moment, because I have got the perfect and thorough teaching through my perfect and well-qualified devotional teachers who are very well-qualified to the related subject. The credit of my success goes to my family as well as to my school only. Honestly, my school is a great blessing for all the Muslim community. On this great occasion of SSC board exam, I would like to present my gratitude towards the whole group of Al Rizwan. I am very happy that I have got 92% marks in SSC board exam, and I am one of the toppers and meritorious student of my batch. And I am very grateful to Director Sir Abdul Rashid Sir and Principal Madam and all the hardworking teachers which have done a great efforts in our preparations. And I have the great realization of hard work of my teachers, because they not only taught but also have a great preparation with of all the topics. And I shall remember all the days of struggle and competition where our teachers have took all the practice with a great encouragement and inspiration. And my heart felt that I have got this rank only because of my teachers' motivation and the great support of my parents. I am very satisfied with the decision of me and my family for continuing my education in Al Rizwan Junior College, and because it is the only college which is a tuition-free full-day college with the perfect team of 2 to 3 lecturers of each subject. And inshallah our coming result will also become a reason of pride for all of us. I am very happy today because I have received 92.40% in SSC examination. I am really very thankful to our Director Abdul Rashid Sir, Principal Sayyida Tehsin Fatima Ma'am, our devotional, motivational, hardworking, devoting teachers. It's really great moment that I have received such a great honor. The credit of my success goes to the entire team of Al Rizwan English School. I am really very happy that I have been the part of Al Rizwan School since 2 years. Al Rizwan has a unique feature of tuition-free full-day school. Our teachers are like our parents. Teachers are known as second parents, but here in Al Rizwan I found that teachers not only treat their students as students but as their own children. Teachers think about their social development, moral values and all-round development. Teachers not only taught us but also given us love as our parents. They not only taught us but also taken thorough practice of each and every topic. Inshallah, I will score nice in 12th and 11th exams also.
in NEET exams also by taking admission in Al Rizwan Junior College. Allah Hafiz. वहीं स्कूल से 11 तलबा ने 80% से जायद नंबरात हासिल किए और 14 तलबा ने 70% से जायद नंबरात हासिल किए। इसके अलावा 9 तलबा फर्स्ट क्लास में कामयाब हुए। स्कूल में 75% से जायद तलबा का रिजल्ट फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन और मेरिट में रहा। इस वजह से अल रिजवान का 10वीं का रिजल्ट पूरे मराठवाड़े में मुस्लिम माइनॉरिटीज के स्कूलों में नुमाया रहा है। succeeded in giving remarkable result in SSC board exam. Among 60 students, our 8 students got above 90% marks, 12 students got above 80% marks, and 14 students got above 70% marks. Alhamdulillah, it's really a matter of great pleasure and pride that due to this remarkable result, Al Rizwan succeeded making his position not only in Nanded district but also at Marathwada level. As this year's SSC result analysis showed that the results were very disappointing and below average. But still, in such disappointing results of SSC board exam, Al Rizwan's result was remarkable, shining and bright. Means 70% result was meritorious. So, as we know that this year SSC syllabus has been changed, and another challenge was the reduction of 20 marks from English, Marathi, Hindi and social science. Still, these two challenges, we have given our result as usual and better than the previous year. This shows the purity and the honesty work of Al Rizwan. That Al Rizwan is doing very honest and pure work on academic level. This year our 10th batch was really very challenging. In this batch there was a good quantity of talented and genius students, as well as there were 10 weak students who were near to fail. So it was really a great challenge for us to give the merit result as well as to maintain the good result by making the failure student towards the success. So I am very much thankful to my team of teachers who worked very honestly, sincerely and devotionally to give a remarkable result. As we all know that Al Rizwan has a unique identity among the various institutions, that we don't permit our students to go for the tuition. As we have introduced tuition free full day school as well as tuition free full day college. So it is our strong appeal and effort that we are ready to provide all the necessary things through our school only. And whatever the features we have set up for our institution, we are 100% true to our words. All our teachers who teach in SSC as well as in HSC,
they are perfect in their related subject. And after their coaching, our student need not to go for any other person for clearance of doubt or for special guidance. So very purely we are doing the hard work for making our student capable of the challenges of this academic, this challenging era, and we are giving the best result. Still our some parents have attached themselves with the traditional education system that as their student arrive in 10th, they just worried about to engage them in various coaching classes, and due to their misjudgment they face the difference in their result or a damage in their results. So the question arises that in such situations where our Muslim community is facing lots of drawbacks in the results or the education system, why we parents or the students don't do the proper judgment? As Al-Rizwan has given the assurance, and Al-Rizwan is proving its results by giving the remarkable result in comparison to others. So it is necessary for all of us that if we consider ourselves well educated and well aware about the education system to make the proper judgments, and through the perfect teaching it is possible, as well as a perfect practice is needed by the student through the team of perfect teachers, then only you can give the result. And honestly speaking, Al-Rizwan's management as well as teachers are doing the best work as we make the perfect updates and the planning in education system, and we implement them so perfectly that whatever the result we have in our round exam, the same result we enjoy in the board exam. So that is the best proof of our best, fair and fine evaluation system. We check the papers of students so minutely that our student got the same marks in board exam also. So we are well aware and updated with the challenges of the education system. In HSC also our result is the best among the minorities, and in NEET, Alhamdulillah, it's a very big and crucial challenge. Summa Alhamdulillah, we have succeeded in giving the remarkable result in NEET also. Our quantity is less, but in comparison to our quantity, our quality result is very remarkable. And whatever the perfect planning or the best work we are doing, we are sure about our success. And being the principal of Al-Rizwan Junior College and Group of School, I offer my special thanks to those parents who wholeheartedly trust on the words of our director sir and on our special feature and our aims and purposes. So we are very thankful to all those parents. Because of their trust, we have succeeded in giving the remarkable result. I am also thankful to those students who very honestly and purely worked as per our planning and succeeded in giving the remarkable result. May Almighty Allah give us the strength to give our best to this community and make us fully eligible for our aims and purposes, and give this institution lots of successes and lead this institution toward the highest peak of successes. Ameen. Thank you Allah. 10वीं की इस शानदार कामयाबी पर स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल रशीद ने तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इदारे की मेहनत आइंदा भी इसी तर्ज पर जारी रहेगी। और इसी साल नीट में साइंस शोबे के जो नताइज रहे, उनमें सादिया बुतुल ने बिना किसी ट्यूशन के सिर्फ कॉलेज की तालीम के बल पर 95% नंबरात हासिल किए थे। डायरेक्टर अब्दुल रशीद का कहना है कि इदारा हमेशा कौम का तुर्रे इम्तियाज बनता रहेगा और अपने मुल्क को, कौम को होनहार तलबा व तालिबात देता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस मकसद के तहत जो है हमने जो है बुनियाद डाली थी स्कूल की, कि हमारा टारगेट था कि भाई रिज़ल्ट तो आते हैं लेकिन मेरिट के रिज़ल्ट्स हमारे जो है मुस्लिम समाज के अंदर स्कूल्स कम देते हैं, और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है पिछले कई सालों से हम लोग वर्क कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10th के अंदर जिस अंदाज में हमने रिज़ल्ट दिए, और ओवरऑल जो है रिज़ल्ट देखा जाए तो नांदेड़ के अंदर जो है 10th के जब रिज़ल्ट आए, क्योंकि बोर्ड ने जो चेंजेस किया था, बोर्ड पैटर्न चेंज हुआ, लैंग्वेजेस के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है ख़त्म कर दिए गए,
बच्चों को 35 मार्क्स लेना पड़ेगा पास होने के लिए। और उसी के साथ साथ जो है नया सिलेबस था। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल बनाकर जो मेहनत की, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे अलग अलग रैंक के होते हैं, उनका रैंक कैसा बढ़े, अगर कोई बच्चा फेल का है तो उसको पास लेवल की कैसी तैयारी कराए। तो ऐसे तकरीबन हमारे पास 10 बच्चे ऐसे भी थे जो हमको डर था कि बच्चे फेल हो जाएंगे, लेकिन हमने उनको बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कराई और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन बच्चों का पास होना ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और उसी के साथ साथ जो बच्चे 60 के फर्स्ट क्लास के थे उनको 70 तक कैसा लाए, 70 के बच्चों को 80 तक कैसा लाए, 80 के बच्चों को 90 तक कैसा लेके जाए, यानी ये लेवल पे हम लोगों ने जो है तैयारी की। और वो तैयारी के ज़रिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो है तैयारी को, हमारी मेहनत को कबूल किया। क्योंकि आज नांदेड़ के अंदर जो है सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आम हो चुकी है। वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके अंदर पूरे कौन से स्कूल में कितने बच्चे बैठे, कितना परसेंटेज आया, ये तमाम चीज़ों की वजह से सोशल मीडिया के अंदर, व्हाट्सअप के अंदर लिस्ट के साथ बच्चों के परसेंटेज आ रहे हैं। और वो चीज़ देखने पर एहसास हो रहा है कि भाई इस साल ख़ास तौर से जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का रिज़ल्ट डाउन रहा। और उस हालात में अल्लाह ने जो है अल रिजवान स्कूल को जो है एक अच्छे अंदाज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट, जहाँ पर रिज़ल्ट डाउन रहे और यहाँ अल रिजवान में मेरिट्स परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, तो यकीनन जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे टीचर्स को जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों को तैयार किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ तालिब इल्म को जो बहुत अच्छे लेवल पे हमारे मार्गदर्शन पे उन्होंने मेहनत की। और ये रिज़ल्ट्स के अंदर जो है फुल डे का जो पैटर्न है हमारा स्कूल का, कॉलेज का, कि भाई सुबह 7 बजे से 4:30 बजे तक हमारा 10th की क्लासेस होते हैं और उन्हीं क्लासेस के अंदर हम लोग बच्चों की तैयारी कराते हैं, सिलेबस की तैयारी कराते हैं, बोर्ड के पैटर्न की तैयारी कराते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। बारीक बारीक जो है बच्चों के डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं, बारीक बारीक जो गलतियाँ होती है उसको हम क्लियर करा के लेते हैं। उसी वजह से जो है आज हमारा परसेंटेज जो है बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है। और यकीनन जो है आज के इन हालात में जहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो नांदेड़ के अंदर तकरीबन जो है जो बच्चों की लिस्ट है जो वायरल हो रही है व्हाट्सएप के अंदर, उसमें देखा जाए तो तकरीबन जो है 2000 से 2100 के बच्चे जो है 2100 के बीच में बच्चे नांदेड़ शहर से एग्ज़ाम देते हैं और उसमें 50% बच्चे जो है फेल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस हालात में जो है अल रिजवान एक जो है अच्छे रिजल्ट्स के साथ उभर के आता है। ये भी अल्लाह ताला का करम रहा, अल्लाह ताला की मदद रही इसमें। और यकीनन जो है मैं जो है ना सिर्फ 10th क्लास के बच्चों को बल्कि इस साल जो है 2018-19 का जो एकेडमिक ईयर रहा हमारा, जो एकेडमिक ईयर के अंदर KG से लेके 9th क्लास तक जो हमारे होम एग्ज़ाम्स थे, होम एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हमारे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फेयर एंड फाइन का है। हम जो है बच्चों को एग्ज़ाम के अंदर उसी अंदाज में, जिस अंदाज में बोर्ड में एग्ज़ाम्स होते हैं उसी अंदाज में जो है बच्चों से एग्ज़ाम से लिए जाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ बच्चों का रिज़ल्ट शो किया जाता है, ताकि बच्चे जो है अभी से, क्योंकि जाहिर बात है कि बच्चे, हर बच्चा मेरिट में नहीं आता, कोई 80 लाता है, 70 लाता है, 60 लाता है, कोई 90 लाता है। तो माँ बाप जो है बिल्कुल बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे, कम लाने पर बच्चे को जो है उनको तैयारी की तरफ लगाएंगे, उनके पीछे डांटेंगे, उनके पीछे जिम्मेदारी रखेंगे। तो एक फेयर एंड फाइन रिजल्ट का भी जो है हमारा जो है जो पैटर्न है उसकी वजह से आज हमारे मेरिट्स बढ़ रहा है, क्योंकि हम नीचे से ही जो है हम लोग उस अंदाज में तैयारी कराते हैं और उस अंदाज में जो है हम लोग जो है उस अंदाज में तैयारी कराने के बाद जिस अंदाज में हम लोग काम करते हैं और जिस अंदाज में जो है हम प्रैक्टिकली बच्चों के ऊपर जो है वर्क करते हैं और जो जैसा बच्चों को हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर जो है जिस अंदाज में जो है बच्चों का बोर्ड का जब एग्ज़ाम्स होता है या फिर हमारे होम एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसा माहौल बनाया जाता है, वो डर जो बच्चों के अंदर होता है उस वजह से बच्चे स्टडी करते हैं और वो स्टडी का नतीजा है कि भाई आज हमारे रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो। क्योंकि 12th के अंदर भी जिस अंदाज में जो है हम लोगों ने जो रिज़ल्ट दिया है उसके अंदर जो 5 बच्चे जो हमारे डिस्टिंक्शन में आए हैं और तादाद भी हमारी 12th के अंदर सिर्फ 32 बच्चे थे, उसमें भी हमने जो इस अंदाज में रिज़ल्ट दिया है यकीनन जो है ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें ग्रुपिंग परसेंटेज के अंदर तो 73 नांदेड़ में हमारा नुमाया रहा। और उसी के साथ साथ जो है नीट के अंदर जिस अंदाज में जो है ओपन कैटेगरी से सादिया बुतुल का 94.9577 जो उसका जो परसेंटाइल रहा वो बहुत बढ़िया रहा।
और ओपन के अंदर 10% का इस साल रिजर्वेशन है। तो यकीनन जो है मिडिल क्लास के जो 8 लाख से नीचे जिनकी अर्निंग है, इकोनॉमिकली जो लेवल पे जो है फाइनेंशियली जो है अर्निंग है, उनके लिए जो गवर्नमेंट ने जो 10% का रिजर्वेशन दिया है उसमें इंशाल्लाह ये बच्ची हमारी ज़रूर बैठेगी। और साथ ही साथ जो है साल्वे आदर्श शांतिनाथ 74% लाकर एससी समाज से बिलोंगिंग करता है ये बच्चा, एससी कैटर में आता है, तो यकीनन ये बच्चे के भी चांसेस बढ़ जाते हैं लगने के। और एमसेट के अंदर भी जो है हमारे जो है साइमा तज़ीन ने जो है पीसीएम के अंदर 83 और पीसीबी के अंदर 88% लाया है। तो यकीनन जो है हर लेवल पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई स्कूल केजी से लेके 12वीं तक होते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं होता कि भाई 10वीं पढ़ा दे रहे बच्चों को, जो है उनको जो है हम बोल रहे भाई अब हमारा काम हो गया, हम 12वीं तक काम कर रहे हैं। जो लोग हम पे फेथ कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 10th में टॉप में थे, लेकिन जब वो बच्चे बाहर गए ट्यूशन्स करे और ट्यूशन करने के बाद उनके परसेंटेज डाउन हो गए और उसके साथ साथ जो है उनका नीट में भी परसेंटेज कम आया। और वही जो बच्चे दूसरे हमारे पास जो आए, सादिया बुतुल ये बच्ची हमारे पास 10th में आई थी, जबकि ये बच्ची उर्दू मीडियम की थी, और ये बच्ची जब हमारे पास 10th में आई तो वो बच्ची पे हमने मेहनत की है और यकीनन वो बच्ची आज जो है 94% लाकर ये बताती है कि भाई एक मेहनत जो है अल रिजवान की रंग ला रही है। तो मेहनत है अल रिजवान में और वर्क है और उसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। टीम बहुत अच्छी है हमारी और ये जो टीम काम कर रही है, यकीनन जो है आज मैं कह रहा हूँ कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, कल पूरा नांदेड़ शहर, पूरा महाराष्ट्र कहेगा कि भाई अल रिजवान के जो लेक्चरर्स है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्कर है और ये बच्चों को जो है बिल्कुल आगे लेके जाने वाले हैं। तो एक प्लानिंग के तहत एक सिस्टम बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और जाहिर बात है कि भाई ऐसे माहौल में हम काम कर रहे हैं कि जब अच्छा होता है तो माँ बाप ये कहते हैं कि हमने किया, और जब ख़राब होता है तो माँ बाप ये कहते हैं कि भाई स्कूल वाले ने किया। तो उन हालात में जो है हम हमारे समाज को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जो है अपने आप जो क्रिटिसाइज भी हमको होता है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अगर हमको लगता है कि भाई ये कुछ माँ बाप अगर हमको सही आईना दिखा रहे हैं तो हम उसके अंदर भी अपने जो है चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे जो खामियां हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। और यकीनन जो है आज जिस अंदाज में जो इदारा डेवलप हो रहा है, आज हमारे पास केजी से लेकर 12th क्लास तक हमारे पास तकरीबन नांदेड़, अर्धापुर, खंदार मिलाकर 1500 के से 1800 के करीब हमारे पास स्टूडेंट है और तकरीबन 200 का हमारे पास जो है स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग मिलाकर। इतनी बड़ी टीम जो है काम कर रही है और इसी के अंदर जो है इतनी बड़ी टीम की पूरी मेहनत है। आज जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे 2018-19 के जो एकेडमिक रिजल्ट्स रहे हमारे, चाहे वो केजी से 9th क्लास तक हो जाए, 11th का हो, 12th का हो या बोर्ड का 10th का हो, तो ये यकीनन जो है हमें जो है मैं एक हमारी समाज को जो है हम आगे लेके जाने का और हमारे नेशन को आगे लेके जाने का हम काम कर रहे हैं। हमारे पास दूसरे समाज के बच्चे भी हैं। तो 10th के अंदर जो है आदर्श साड़वे जो है ये बच्चा मेरे पास जो है पहली क्लास से है और 10th में उसके साथ के कई बच्चे जो है दूसरी तरफ चले गए, लेकिन ये आदर्श साड़वे बिल्कुल हमारे पास था और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है फर्स्ट आइटम के अंदर वो अपने जो है 75% गेन कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है और उसी के साथ साथ जो है यकीनन ये बच्चा अभी लग रहा है रिपीट आने वाले साल, तो अगर ये साल नहीं भी लगता है तो आने वाले साल तो श्योर है ये बच्चा जो है इंशाल्लाह जो है ओपन कैटेगरी के हिसाब से जो है एससी में रहते हुए भी ओपन कैटेगरी के हिसाब से लग सकता है, क्योंकि वो बच्चा उतना होशियार है, हमको पता है उस बात पे। और जिस अंदाज में हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ 10th के अंदर जो है अभिषेक राठौर ने जो है 80% लाया। पिछले 2 साल पहले वो बच्चा हमारे पास ज्वाइन किया था और जो है एक तालुके से रिलेटेड एक छोटे गांव से आया था बच्चा। तो यकीनन हम इस बात के लिए जो है हमको फ़ख्र महसूस हो रहा है कि भाई हम अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के बच्चों पे भी जो है उनको भी बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है हमारे पास दूसरे समाज के बच्चे और हैं, इंशाल्लाह वो बच्चों को भी हम उसी अंदाज में मेहनत करेंगे जिस अंदाज में हम हमारे बच्चों को मेहनत कर रहे हैं। और यकीनन जो है मैं आज जो है मुबारकबाद दूंगा मेरी पूरी टीम को और पूरे लेक्चरर्स को, पूरे हाई स्कूल की टीम को, प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी सेक्शन है, इंचार्ज है रिलेटेड टू अर्धापुर खंदार है, और मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे पूरे पेरेंट्स को जो हम पे फेथ करते हैं। और यकीनन जो है ऐसे हालात में, क्योंकि सादिया बुतुल का भी जो स्टेटमेंट था कि जब वो बच्ची कॉलेज में एडमिशन ली तो कई लोगों ने उसको कहा था कि भाई तुम गलत जगह पे एडमिशन ले रहे, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा, लेकिन उसका ये स्टेटमेंट आया कि मेरे साथ के कई टॉपर्स बच्चे थे और उनके वो अच्छे कोचिंग क्लासेस में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चों का जो है नीट के अंदर परसेंटेज कम आना, बोर्ड के अंदर परसेंटेज कम आना, इस बात का सबूत है कि अल रिजवान बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है।
और यकीनन जो है आगे चल के इसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि हमारा जो है आज नांदेड़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो आज के हालात में भी जब नीट के रिज़ल्ट्स आए हैं, 5 जून को जब नीट के रिज़ल्ट आए तो बहुत सारे जो है उसके दूसरे दिन जो है पेपर्स में, परजेवानी में बहुत सारे पेपर्स के अंदर जो है पूरे कोचिंग क्लासेस के एड्स आए। पूरे कोचिंग क्लासेस वालों ने अपने अपने रिजल्ट्स को शो किया। आप उसको एनालिसिस करके देखिए, उसमें हमारे मुस्लिम के बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो ये बात गौर फिक्र करने की बात है कि भाई हमारा जो क्रीम जो उनके पास जा रहा है तो वो क्रीम को वो लोग क्यों उसको जो है रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, वो जो है माँ बाप ने उन तक सवाल उनको पूछना चाहिए। और जहाँ पर हमारे पास एक आधा बच्चा होता है उसको हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई बच्चों के ऊपर मेहनत बराबर नहीं हो रही है। जिस अंदाज में नीट का जो काम होता है, बच्चे को पर्सनल नीट की तैयारी कराना पड़ता है। आप क्लास में बच्चे की नीट की तैयारी नहीं करा सकते। जब बच्चा 720 का होल 11th और 12th के ऊपर जब बच्चा एग्ज़ाम देता है, जब उसके अंदर जो है एग्ज़ाम देने के बाद उसको जो है जब उसके ड्रॉबैक्स हमारे सामने आते हैं कि कितने क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ दिया, कितने बच्चे रॉन्ग उसके गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग कितने हो रहे, पॉजिटिव मार्किंग कितने हो रहे, और ओवरऑल उसका जो कितने जो है उसको मार्क्स हो रहे हैं। तो ये उसके ऊपर एनालिसिस कर उसके ऊपर उसके बच्चों के जो खामियां हैं, जो डाउट्स है, उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जाके बच्चा जो है फिर नए पेपर्स की तैयारी करता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर जो है बोल्डनेस लाना पड़ेगा। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम्स होता है वो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है जो पढ़ लिए वही आएगा। इसके अंदर तो लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस अंदाज में घुमाए जा रहे हैं, किस अंदाज में बच्चों को जो है एक जैसे आंसर्स के ज़रिए बच्चों को जो है नेगेटिव मार्किंग बढ़ाने के जो है कोशिश की जाती है पेपर के ज़रिए। तो वो तमाम चीज़ों को हमको समझाना पड़ेगा। और उसी लेवल पे हम लोगों ने सादिया की तैयारी की थी और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। हम जो है बिल्कुल जो है हम लोग नीट की भी तैयारी जो रिपीट बैच करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा जिनका जो है 300 पे आके रुक गए, 350 पे आके रुक गए, 400 पे आके रुक गए। तो वैसे 400-450 पे आके रुक गए, वैसे बच्चों से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि भाई आप आओ, अल रिजवान ज्वाइन करो, देखो हमारे पास का पैटर्न देखो। आप दूसरों की बात सुनने से बेटर है कि भाई आप अल रिजवान में आके अल रिजवान को आप खुद अपनी आंखों से, अपने माइंड से उसको जो है परखो। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, और उसके बाद आप उस लेवल पे जो है बच्चों आप उस लेवल पे जो है आप कर सकते। कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपने जहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो आपको यहीं पढ़ना है। आपके पास ऑप्शंस है। आप जो है ऐसा नहीं है कि भाई जो है आप दूसरे कॉलेज से थे, आपने जो है नीट की, आप यहाँ पर नीट की तैयारी कर सकते हैं। हम नीट की तैयारी करा रहे हैं, रिपीट बैच में हम नीट की तैयारी करा रहे हैं, और मुस्लिम ही नहीं सभी बच्चों को हम तैयारी करा रहे हैं। तो यकीनन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स उस लेवल पे जाए, हमारा नेशन डेवलप हो, हमारा समाज डेवलप हो। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला जो है हमको इसमें कामयाब करे। इदारे के सदर अब्दुल वहीद, प्रिंसिपल सैयदा तहसीन फातिमा, हाई स्कूल की वाइस प्रिंसिपल तनवीर सुल्ताना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल हसीब, कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल अर्शिया खुर्शीद फातिमा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अब्दुल नजीब व तमाम स्टाफ ने कामयाब तलबा व तालिबात को दिली मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।